Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. As exam comes near, we become worrisome. So first thing is, as we come closer to the exam, the common error committed by candidates is they overexert themselves. They try to cover more and more mock tests. They try to read more and more material. They try to do lot of things just before the examination. And normally this type of effort spoils their chance in the real examination. This examination is a psychological exam. This is an exam that can be performed well if we are having relaxed mind, if we are having cool mind, if we are at peace in mind. So when we are appearing for competitive examinations like this, the most important thing is how we are spending the final days before the exam. Are we tense or we are relaxed? Are we overexerting or giving proper rest to our brain? This determines our success or failure. So my advice to each one of you is take proper rest along with your study. Don't overexert during these days. If you are studying for 2 hours, take at least 1 hour rest after that. Then again study for 2 hours, take 1 hour rest. Anxiety is always there. Because whenever you are taking rest, some people may be feeling I am wasting time. No, you are not wasting time. You are recouping. You are relaxing your brain. And a relaxed brain can do miracle in the exam. And if you are overstrained before exam, your brain may not function. And that is happening with many candidates. When they go to the examination hall, they get nervous, they are unable to concentrate on the exam, and sometimes they are unable to even attempt those questions. Those are very easy. And this is only due to fatigue. This is only due to overtiredness. This is only due to overexertion. So the best recourse is before examination, take proper rest. Don't overexert. Nothing much is going to be changed in last 3-4 days. The real preparation is already over for you. You have prepared for many months now. Your preparation is there. Now if you learn the art of remaining relaxed, giving proper rest to your brain, and plan your study in such a manner that few hours for study and few hours for rest, you will be able to perform exceedingly well in the competition. So, what should be your strategy? Follow the daily schedule which I am giving, and in the schedule I am trying to give you direction how you should utilize the day. No need of doing excessive mock tests during these days because mock tests are tiring. Not more than one mock test should be attempted during these days. Some people may be attempting 3, 4, 5, 6 mock tests a day. This is an error. This is going to cost you dear in the examination. Don't do this mistake. One mock test per day is more than enough in the final days. The purpose is to focus on weak areas, focus on one subject as I have suggested in today's video, and take proper rest. So God bless you with success. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जैसे जैसे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमें वो बातें सीखनी है जो हमें एग्ज़ाम में सफलता दिलवाए. काफ़ी लोग इन दिनों में एक्सेसिव पढ़ाई करते हैं, एक्सेसिव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, अपने को ओवर टायर्ड करते हैं.
अगर वो नॉर्मल डेज में 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं तो इन दिनों में 15 घंटे पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, और यही उनके फेलियर का कारण बनता है। जब हम अपने दिमाग को थका देते हैं, जब हम अपने दिमाग को ओवर टायर्ड कर देते हैं, जब हम उसकी क्षमता से अधिक काम लेने की कोशिश करते हैं, तो वो काम करना बंद कर देते हैं, और इसका खामियाजा हमें एग्ज़ाम में भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम है, यदि हम फ्रेश माइंड से देंगे, रिलैक्स माइंड से देंगे, चिंता रहित माइंड से देंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आएगी। और अगर हम थके हुए दिमाग से देंगे और ओवर टायर्ड होकर देंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्लेक्सेस हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा दिमाग है, कितना क्विकली रिएक्ट करता है उस क्वेश्चन को, इसका बड़ा रोल है। और ये क्विकनेस या ये तेज़ी दिमाग में तभी आती है जब दिमाग शांत होता है, जब दिमाग को प्रॉपर रेस्ट मिला होता है, जब दिमाग सोचने समझने के लिए मजबूर होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, वैसे वैसे हमें पढ़ाई के घंटे बढ़ाने की बजाय पढ़ाई के घंटे घटाने चाहिए, और अपने रेस्ट करने के घंटे बढ़ाने चाहिए। तो जैसे अब हमारे एग्ज़ाम में 3 दिन का गैप रह गया है, आज बुधवार है और कुछ लोगों का इतवार को एग्ज़ाम है, तो इन लोगों को अब अगर वो 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटा रेस्ट भी ज़रूर करना चाहिए। फिर 2 घंटे पढ़ाई करें, फिर 1 घंटा रेस्ट करें। कई बार लगता है हम रेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ और पढ़ लें। इससे कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी पढ़ाई होनी थी वो हो चुकी है। अब ये जो वक्त है, ये दिमाग को शांत करने का है। अब ये जो वक्त है, दिमाग को नोरिश करने का है। अब ये जो वक्त है, प्रॉपर रेस्ट करने का है। और जो चीज़ें मैंने अभी तक की हैं, उनको समेटने का है। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है इन दिनों में। एक मॉक टेस्ट सफिशेंट है एक दिन के अंदर। बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ें। आपके पास 3 दिन है, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा पढ़ा, तीसरे दिन फिर पहला पढ़ लिया। उससे भी आपका काम चल जाएगा। आज का जो मेरा डेली शेड्यूल है, उसमें भी मैंने आपको कहा है कि आप या तो क्वांट पे पूरा दिन लगा लें या रीजनिंग पे पूरा दिन लगा लें। बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंस होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांत करना है। ये मानना है कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, मैं एग्ज़ाम में जाऊंगा और सफल होऊंगा। ना कि उसने कुछ बता दिया, ओए तूने वो पढ़ा है, अच्छा ओ मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ। इस तरह की बातों से बचिए। किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या आएगा, इसलिए कोई भी अगर कहीं पे कोई आपको भ्रम की स्थिति में डाल रहा है, उससे बचें। जो आपने तैयारी करनी थी उसी को समेटना है, उसी को बड़े प्लानिंग से तैयार करना है, और कोशिश करनी है अधिक से अधिक दिमाग को रेस्ट देने की। जितने आप रिलैक्स्ड माइंड के साथ एग्ज़ाम देने जाएंगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आखिरी 2-3 दिनों में नहीं होती है। जो पहले से तैयारी होती है वही काम आती है। इन दिनों के अंदर सिर्फ आपने अपने आप को रेस्ट देना है, प्रॉपर प्लान करना है। एक सब्जेक्ट एक दिन में करिए, एक से अधिक मॉक टेस्ट किसी भी दिन मत करिए। और एग्ज़ाम से पहले दिन पूरी तरह से हमें आराम करना है, कम से कम पढ़ाई करनी है। जो कुछ भी करना है हम फ्राइडे तक निपटा लेंगे। आज बुधवार है, इसीलिए मैं 3 दिन कह रहा हूँ, बुध, वीर, शुक्र। इन 3 दिन आपने पढ़ाई और रेस्ट करना है। शनिवार आपका ट्रैवलिंग या रेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा, जिनका 1 तारीख को एग्ज़ाम है। गॉड ब्लेस यू ऑल।